السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، انتخابی اصلاحات، جنرل الیکشن اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبر شیئر کرتا چلوں۔ اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابی اصلاحات میں کیسے شامل کیا جائے گا، پی ٹی آئی شامل ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضدی بچے کی طرح سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ 3.5 سال بھی اسی طرح ہی انہوں نے گزارے ہیں جگاڑ کر کے، لیکن اب سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں اور الیکشن کمیشن کیا سوچ رہا ہے، انتخابی اصلاحات پر کیا ہو رہا ہے، الیکشن کب ہوگا، الیکشن کمیشن نے کیا کہا ہے حکومت کو، یہ آج بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ خورشید شاہ صاحب جو ہیں بہت ذمہ دار آدمی ہیں، وفاقی وزیر ہیں، کرتا دھرتا ہے سمجھے حکومت کے، حکومتوں کے، بلکہ جو پیپلز پارٹی کی یا جو ایک مشترکہ حکومت ہوتی ہے نون لیگ کی ہو چاہے، لیکن خورشید شاہ کو بہت امپارٹنٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو آج خورشید شاہ کے ساتھ بات ہوئی ہے، میری بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے حکومت سے 7 ماہ لیے ہیں، 7 مہینے لیے ہیں کہ 7 مہینے تک ہم الیکشن نہیں کرا سکیں گے، ہم انتظامات نہیں کر سکیں گے۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے، کیونکہ پہلے 4 مہینے 5 مہینے کی بات چل رہی تھی کہ 4 مہینے الیکشن، جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس میں کوئی الیکشن کمیشن نے 4 ماہ کی بات کی تھی کہ کم از کم 4 مہینے الیکشن کمیشن کو چاہیے ہوں گے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے خورشید شاہ نے اپنے یہ آن دا ریکارڈ یہ کہا ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن نے 7 ماہ مانگے ہیں اور نومبر اکتوبر تک جنرل الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی خبر ہے کہ آن دا ریکارڈ خورشید شاہ نے بول دیا ہے، کہہ دیا ہے۔ یہ جو ریومرز چل رہے تھے، افواہیں گردش کر رہی تھی، اڑائی جا رہی تھی کہ بھائی وزیر اعظم کوئی اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں یا مشاورت حکومت کر رہی ہے، حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اس طرح کی بہت ساری منفی پروپیگنڈا ایک کیا جا رہا تھا حکومت کے خلاف، سیاسی جماعتوں کے خلاف، کہ بھئی عمران خان کے جانے سے کوئی جس طرح پاکستان بالکل تباہی کے دہانے پہ آ گیا ہے، معیشت تباہی، وہ تو پہلے ہی عمران خان کر کے گئے ہیں بھئی، تباہی عمران خان مزید کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں نے عمران خان سے اقتدار چھینا ہے، پاکستان بچا لیا ہے ان سیاسی جماعتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے۔ سکوت ڈھاکہ، دوسرا سکوت ڈھاکہ ہونے سے، یعنی سکوت ڈھاکہ تو اب نہ ہوتا، سکوت اسلام آباد آپ کہہ سکیں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اس سے بچا لیا ہے پاکستان کو۔ عمران خان اس طرح پاکستان کو تیزی سے تباہ کر رہے تھے، تو اب پروپیگنڈا بھی ان کی ہی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے، ان کے حواریوں اور یوتھیوں کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی حکومت ناکام ہو گئی۔ بھئی حکومت کے پاس تھا کیا؟ اب حکومت تو کوشش کر رہی ہے، سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ان بحرانوں میں سے پاکستان کو نکالیں۔ معاشی بحران سب سے بڑا چیلنج ہے، یہ آئینی بحران اور سیاسی بحران یہ تو حل ہوتے رہیں گے، یہ آتے بھی رہتے ہیں، حل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن معیشت کا جو بحران ہے وہ سنگین ہے اس وقت بھی، اور اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، جو سیریس لیا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ظاہر ہے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو معیشت کو کیسے سہارا دینا ہے اس پر سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اس کے ساتھ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آج شازیہ مری نے بھی بڑی امپارٹنٹ پریس کانفرنس کی، دھواندھار قسم کی، عمران خان کے خلاف تھی، پی ٹی آئی کے خلاف تھی، جو عمران خان تقاریر کر رہے ہیں جلسوں میں، ان کے حوالے سے ان کو جواب الجواب سمجھے عمران خان کو تھا۔ تو اس میں نے شازیہ مری سے یہ سوال کیا کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ عمران ضدی بچے کی طرح ہیں جو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو انتخابی اصلاحات میں عمران خان کو کیسے آن بورڈ لیں گے، کیسے آپ آمادہ کریں گے کہ وہ مذاکرات میں، وہ انتخابی اصلاحات میں حصہ لیں، آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت میں شامل ہو، یا انتخابی اصلاحات کی جو کمیٹی بنے گی اس میں شامل ہو، کیسے ان کو راضی کریں گے؟ تو شازیہ مری نے بڑا امپارٹنٹ یہ جواب دیا، وہ جواب معقول تھا کہ بھئی ایک طرف تو پی ٹی آئی کے ممبران نے استعفے دے دیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک پارلیمنٹ لاجز میں، سرکاری گھروں پر
पी टी आई के लोग काबिज बैठे हैं। पी टी आई के अरकान कौमी असम्बली जो हैं अभी तक पार्लियामेंट लाजिज में सरकारी रहायश गाहों पर काबिज हैं। और वज़रा परवेज़ खट्टक भी 9 वज़रा जो हैं वफाकी साबिक वफाकी वज़रा पी टी आई के जो अब वज़रा नहीं है, वो भी वज़रा के घरों में, मिनिस्टर इनकलेब में वज़ीरों के घरों पर काबिज हैं। अभी तक उन्होंने कब्ज़ा नहीं छोड़ा। तो ये एक तरफ मदीने के रियासत मदीना और दयानतदार, बड़े ईमानदार और बड़े उसूल परस्त कहलाते हैं, लेकिन अभी तक सरकारी गाड़ियां भी इमरान खान साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो भी सरकारी गाड़ी जो BMW पता नहीं कौन सी गाड़ी बता रही है मरियम औरंगज़ेब, वो अपने साथ लेकर गए हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ इमरान खान तनकीद करते थे कि जी इतना प्रोटोकॉल नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, अब इमरान खान को कितना प्रोटोकॉल है। उस दिन मैंने आपको शेयर किया था, एक प्रोग्राम किया था कि कितने पुलिस एहलकार बन्नी गाला में तैनात हैं। इमरान खान जलसों जुलूसों में जाते हैं तो कितनी पुलिस की और रेंजर्स की गाड़ियां कितनी होती हैं उनके साथ। तो ये सिक्योरिटी नहीं है, ये प्रोटोकॉल है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि एक महंगाई है, एक करप्शन है। जिस तरह मेडिसिन महंगी की गई थी 300 400 गुना, 100 रुपये वाली चीज़ 400 रुपये 300 रुपये कर दी थी, 300 400 कर दी थी। तो मैंने कहा था ये महंगाई नहीं है, ये करप्शन है, ये गबन है, ये बहुत बड़े ब्लेंडर है, ब्लेंडर भी नहीं बहुत बड़े करप्शन के वो जो है दाव है इन्होंने जो लगाए। तो ये कोई महंगाई नहीं थी। महंगाई होती 100 रुपये वाली चीज़ 110 हो जाती, 120 हो जाती या 130 भी हो जाती तो भी महंगाई आप क्लेम कर सकते थे। 100 रुपये वाली चीज़ 400 रुपये में हो जाए ये तो महंगाई नहीं हुई, ये तो भाई खांचे थे और अरबों रुपए के खांचे उसमें लगा दिए गए। इसी तरह जिस तरह ये खांचे थे, इसी तरह इमरान खान साहब जो ये जो घरों पर काबिज बैठे हैं, इनके लोग अभी तक नहीं छोड़ रहे। तो मरियम जो शाजिया मरी है, उन्होंने कहा कि भाई सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी सहूलियात अभी तक वो छोड़ नहीं रहे, तो फिर पार्लियामेंट में इनको ताउन करना पड़ेगा हमारे साथ और इंतखाबी इस्लाहात में बैठना पड़ेगा। नहीं तो ये मरातें छोड़ दें और पार्लियामेंट से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाएं, क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात तो पार्लियामेंट में मौजूद जमातों ने करनी है ना। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून साजी होनी है। बाहर जो जमातें बैठी हैं वैसे तो उनके साथ भी उनका भी राइट बनता है, उनके साथ भी उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनके साथ भी मुशावरत करनी चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स और हैं, फ़र्ज़ करें फाफिन है, पिलडाट है या इलेक्शन कमीशन है या जो इलेक्शन से मुताल्लिक जो इदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इन तमाम फ़रीक़ैन को एतमाद में लेना चाहिए, बल्कि अवाम को भी एतमाद में लेना चाहिए कि भाई ये इंतखाबी इस्लाहात हैं। जो सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें होती हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनसे भी इनपुट लेना चाहिए, उनसे भी तजावीज़ लेनी चाहिए। PTI एक सियासी जमात बना दी गई है, तो अब PTI को ज़ाहिर है ज़रूर ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन आज खुर्शीद शाह ने ये कहा है कि 7 महीने तक यानी अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी इनकार कर दिया है हुकूमत को। और इंतखाबी इस्लाहात जो है उनकी यानी अगले हफ्ते खुर्शीद शाह ने ये कहा है कि अगले हफ्ते इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में पेश कर दी जाएंगी। अब इंतखाबी इस्लाहात कैसे पेश की जाएंगी? कोई बिल लाया जाएगा या तजावीज़ पेश कर दी जाएंगी जिन पे डिबेट कराया जाएगा, या इंतखाबी इस्लाहात के लिए कोई कमेटी के क़याम के लिए कोई तहरीक कौमी असम्बली में कोई मोशन मूव किया जाएगा? क्या किया जाएगा ये खुर्शीद शाह ने क्लियर नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि अगले हफ्ते से इंतखाबी इस्लाहात पर हम काम शुरू कर देंगे। और पीपल्स पार्टी के लिए ये भी इतलात मेरी है कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी के लिए नाम भी दे दी है। अब PTI के लिए ये कहा जा रहा है कि PTI ने शर्त रखी है, PTI ने शर्त ये रखी है कि पहले निगरान हुकूमत कायम करो, मौजूदा हुकूमत ख़त्म करो और निगरान हुकूमत कायम करो 3 महीने के लिए, तो फिर हम 3 महीने के लिए आपके साथ इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी में बैठ सकते हैं और मुशावरत में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा कि भैया जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि चाहे निगरान हुकूमत ही कायम कर दे 3 महीने के लिए,
3 महीने में फिर भी हम इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर निगरान हुकूमत कायम करने का फ़ायदा, क्योंकि निगरान हुकूमत तो आइन के मुताबिक 3 महीने के लिए आएगी ना, तो 3 महीने में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के से कासिर है तो फिर निगरान हुकूमत 3 महीने के लिए क्या आकर करेगी? तो फ़ायदा नहीं है निगरान हुकूमत के क़याम का। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भले निगरान हुकूमत कायम भी कर दे तो भी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो पीटीआई की डिमांड ये है कि निगरान हुकूमत कायम करे तो फिर हम इलेक्शन, ये शर्त रखी है पीटीआई ने, लेकिन पीटीआई पर इनको भरोसा भी नहीं है। सच्ची बात यह है क्योंकि माजी में जितनी भी कमेटियां बनी हैं उनमें पीटीआई ने भंड मारे हैं। पीटीआई फड्डा करके निकल जाती है और फिर ये कहती है कि जी ये एनआरओ मांग रहे थे इसीलिए हमने इनको एनआरओ देने से इनकार कर दिया और ये मामलात इसलिए तय नहीं हो सके। कभी भी इनके पीटीआई के मुज़ाकरात सियासी जमातों के साथ कामयाब नहीं हुए। जो भी इशू हुआ था, कोरोना का मामला आया था, इंतखाबी इस्लाहात का मामला आया था, चेयरमैन नेब की तकर्री का मामला आया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला आया था, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का 2 दफ़ा मामला आया था, इस तरह के और भी बहुत सारे इश्यूज़, या फेटफ का कानून था, एक आधा मौका था जिस पे इत्तफाक हुआ था, वो भी इस्टब्लिशमेंट के दबाव के तहत, जो इस्टब्लिशमेंट चाह रही थी कानून साजी जो कराना चाह रही थी, तो उस पे सियासी जमातें भी, पीटीआई भी, सब जमातों को पे प्रेशर था, दबाव था, वो कानून साजी तो वो उन्होंने करा ली। लेकिन उससे हट के जो अवामी फलाह के लिए जो सियासी जमातों के मफाद में या उनको जो करनी चाहिए थी जो कानून साजी, उस पे पीटीआई ने कभी भी इत्तेफाक सियासी जमातों के साथ नहीं किया था। ये ड्रामे करते थे पीटीआई वाले, हम इनको कवर करते रहे हैं। सच्ची बात यह है कि ड्रामा ये करते थे कि भाई कुछ दिन मुज़ाकरात चला के और जो ये अपनी तजावीज़ अपोजिशन वाले पेश करते थे तो इनकी तजावीज़ मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। अपनी तजावीज़ थोपने के लिए, मुसल्लत करने के लिए वो फड्डा कर देते कि नहीं जी ये आपकी तजावीज़ जो है न, इनमें एनआरओ है, इनमें जरदारी को रिलीफ है, इसमें नवाज शरीफ को रिलीफ है, इसमें शहबाज शरीफ को रिलीफ है, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं। ये ड्रामा करके फिर पीटीआई निकल जाती थी। तो इसीलिए पीटीआई के इन तमाम ड्रामेबाजी का सियासी जमातों को अंदाज़ा है, पता है, पूरी तारीख़ इनकी 3.5 साल की सियासी जमातों के सामने है। तो सियासी जमातें इन पर भरोसा करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन मेरे जो ज़रा ये बता रहे हैं कि कोई न कोई नुस्खा ज़रूर निकाला जाएगा पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेने के लिए। उसमें कोई बोल बच्चन ही हो इमरान खान के लिए, कोई आसरा, खाली दिलासा, कोई लालीपॉप इमरान खान को कैसे दिया जाता है, किस तरह का किस किस्म का दिया जाता है, ये अभी मैं कुछ इस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कोई ऐसा सुहाना, ऐसा खूबसूरत लालीपॉप, खूबसूरत पैकेट, कोई लालीपॉप जो है किसी खूबसूरत पैकेट में इमरान खान को पेश किया जाए, जो इमरान खान समझे कि भाई मेरा जो दबाव है इलेक्शन का जल्द कराने का, उस पर अब सियासी जमातें, इस्टब्लिशमेंट जो है वो मानने के लिए तैयार है। इस तरह का कोई लालीपॉप दे के पीटीआई को लाया जा सकता है। नहीं तो पीटीआई, ज़ाहिर है पीटीआई नहीं आना चाहेगी, फैसिलिटेट हुकूमत को क्यों करना चाहेगी, तो एक रुकावट ज़रूर बनेगी पीटीआई। लेकिन हुकूमत ने एक कोशिश शुरू कर दी है कि अगले हफ्ते से इंतखाबी इस्लाहात पर बाकायदा काम शुरू कर दिया जाएगा और सियासी जमातों से ज़ाहिर नाम भी मांगे गए हैं, तजावीज़ भी सियासी जमातों की जानिब से दी जाएंगी, इलेक्शन कमीशन से तजावीज़ ली जाएंगी, उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इम्कानात इसके भी हैं कि फाफिन और पिलडाट और बाकी जो सिविल सोसाइटी के जो इलेक्शन से रिलेटेड इदारे हैं या तंजीमें हैं, उनसे भी इनपुट लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।